Morning everyone. Today we start our new chapter, chapter 3, movement of the earth. Open at page 118, children. Now our third chapter name is movement of the earth. Let's start from the first step which is given in your book, children. See the diagram given in your book. Here it is. See this globe. What it is given here. Observe the below picture carefully and fill in the missing blanks. Here, the arrow it is. The outer layer of the earth is called the. What is the outer layer of the earth, children? Write down. What is the outer layer of the earth? Crust. Yes, crust. See the next arrow. The major land masses on the earth are known as. Major land masses are known as what? What you will guess? Yes, it is continent. What it is? Continent. Major land masses मतलब बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े, लैंड मासेस. ओके, मैंने आपको बताया था क्या है वो. यस, कॉन्टिनेंट्स आर देयर एंड द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैरा हियर, चिल्ड्रन. Millions of year ago, it is in international language, millions. Okay, millions of year ago our earth did not look like what it does now. हमारी अर्थ कैसे दिख रही है? Here in our book, here in this globe, how it is look? Continent are very far away from each other. Yes, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूरेशिया, एशिया, like that. Okay, so these are the continent are far away from us. It looks today. Okay, but it not happen, but it not look million year ago. It not look like this million year ago. Million year ago ऐसा पहले नहीं दिखते था. Okay, अपना अर्थ, अपना planet, it does not look like that which we will see today. Okay, see what it happened. Millions of years ago, our earth did not look like what it does now. This was explained by Alfred Wegener, a German geoscientist. Alfred Wegener ने कहा, जो एक जियोसाइंटिस्ट था. ओके थे. ओके, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी अर्थ अभी दिख रही है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट आर फार अवे फ्रॉम अर्थ, ऐसी पहले नहीं दिखती थी. तो हाउ इट लुक, कैसे दिखती थी उस समय. ओके, सी इन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उनकी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में लिखा हुआ है कि जैसे अर्थ अभी दिखती है, इट कैन नॉट लुक लाइक मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ओके, इन 1912 दिस थ्योरी प्रपोज्ड that our earth was one huge land mass and that there was only one supercontinent called Pangaea. Okay, here what it is given here in this line, children, ki all the continents are together and it is known as supercontinent. All continent means यूरोप भी पास में, साउथ अफ्रीका भी पास में, अमेरिका भी पास में, ऑस्ट्रेलिया भी पास में, एंटार्क्टिका भी पास में. दे आर very close to each other, they are joined to each other and they are known as supercontinent. What they are known as? Supercontinent. Continent you know ना, हाँ, land masses, large land masses को continent कहा जाता है. Clear? But when the all continent come together, they are called supercontinent. Okay, called Pangaea. और उसका नाम क्या दे दिया था, children? Pangaea. Pangaea. Underline it. With the passage of time. Passage of time means when the time passes. Okay. With the passage of time, the Pangaea broke into two separate land masses. एक पूरा land masses, it broke into two लैंड मासेस, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके, हम कब की बात कर रहे हैं? मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं. क्लियर चिल्ड्रन? व्हेन द ऑल लैंड मासेस कम टुगेदर, दे आर नोन एज सुपर कॉन्टिनेंट. दे आर कॉल्ड, दे आर ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट. दैट मीन्स व्हेन द ऑल कॉन्टिनेंट कम टुगेदर, दे आर द सुपर कॉन्टिनेंट एंड दे आर नोन एज पैंगिया. ओके, फिर when the time passed, it broken into two
पार्ट्स, ओके, इट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, मतलब वो पूरा सुपर जो कॉन्टिनेंट था, जब पूरे कॉन्टिनेंट आके मिल गए थे, ओके, देन दे विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके, ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए. क्लियर? सी, विद द पैसेज ऑफ टाइम द पैंगिया broke into 2 separate land masses, Laurasia and Gondwana land. Okay, वो दोनों पार्ट्स ऑफ लैंड को क्या नाम दिया चिल्ड्रन? Laurasia and Gondwana land. Okay, these are the 2 names of those 2 land masses. Over the period of time when the time passes, okay, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, over the period of time, these 2 land masses began to disintegrate further into different land masses. फिर वो जो 2 land masses थे, okay, which are they? Laurasia and Gondwana land. Okay, these 2 masses again disintegrate means again एक के टुकड़े हो गए. disintegrate मतलब वे दोनों भी अलग अलग हो गए. Okay, like that, into different land masses, अलग अलग parts में divide हो गए. Suppose these are the 2 parts, one part broken into different part and another also broken into different part, like that. Okay, this integration and movement continue till the earth reach its present day position. ये जो position है ये continue अभी तक चल रहा है. They all are far away from each other. धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर होते चले गए. अभी कितनी दूरी है अमेरिका और अफ्रीका के बीच में? ओके, अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में. पहले ऐसा था क्या? नो. ओके, दे आर जॉइंड टुगेदर बट दे कैन डिसइंटीग्रेट. ओके, वो दोनों अलग हो गए और दे कैन फॉर्म डिफरेंट लैंड मासेस. और वो किस में कन्वर्ट हो गए? फॉर डिफरेंट लैंड मासेस. क्लियर चिल्ड्रन? अब जैसे अभी जो कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं, अंटार्कटिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, लाइक दैट. ओके, ये अब दिख रहा है. ओके, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर अगो ऐसा था क्या? नो. ओके, नाउ here this disintegration and movement continue till the earth reached its present day position. The given figure of the continent drift show the different stage of the drift. Let us learn more about this movement of land masses. We know that crust is the topmost layer of the earth. चलो इनके बारे में और पढ़ते हैं. As we all know children, crust, as I told you in the last chapter in geography portion, our earth divided into 3 layers: crust, mantle and core. Okay, so upper layer is called crust. So let us talk about that. Let us learn more about the movement of land masses. We know the crust is the topmost layer of the earth. और जो topmost layer है उसी पर सारे लोग सेटल्ड है. ओके, हम हैं सेटल्ड. ओके, ओशंस आर देयर, फॉरेस्ट आर देयर, माउंटेन्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन आवर फर्स्ट लेयर, दैट मीन्स ऑन द क्रस्ट. क्रस्ट पर सारी चीज़ें हैं. ओके, सी, सो वी नो दैट क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. दिस क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट. 7 मेजर प्लेट्स के बारे में बात हो रही है. क्लियर चिल्ड्रन? व्हाट आर दे? लिथोस्फियरिक और लिथोस्फियरिक प्लेट. तो व्हाट आर दे? लिथोस्फियरिक प्लेट. दीज प्लेट्स आर द पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड अंटार्कटिक प्लेट. दीज आर द 7 लिथोस्फियरिक प्लेट. अंडरलाइन इट चिल्ड्रन. ये 7 प्लेट है. प्लेट मीन्स लेयर विच आर ऑन द क्रस्ट. ओके, पैसिफिक बहुत बड़ा है, उसको पैसिफिक प्लेट बोला गया है. ओके, बाकी तो जो सारे नाम है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की लेयर को कहा गया है प्लेट. ओके, साउथ अमेरिका को कहा गया है. यूरोशिया, जो यूरोप और एशिया पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा. ओके, एशिया. ओके, उसको कहा गया है.
और अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका को कहा गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है, और अंटार्कटिका प्लेट अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को कहा गया है। क्लियर? चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू। These plates are continuously moving through their movement is extremely slow. The reason behind the movement of the lithospheric plate is the high temperature at the core of the earth. The heat generated by the core make the tectonic plate move away or come closer. Children, it is very important line I explain you. See, मैंने आपको क्या बताया कि सारे कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट में बदल गए थे। क्लियर? देन इट कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड अगेन इट कैन डिसइंटीग्रेटेड एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इतने दूर आ गए कि अब कई सारी दूरियां हैं, मतलब कई किलोमीटर दूर वे हैं। ओके, और बीच में समंदर है, ओशंस है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब क्या हो रहा है चिल्ड्रन? वो कंटिन्यूसली दूर जाते जा रहे हैं। क्लियर? अब देखो, अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ इज राउंड इन शेप। अब कॉन्टिनेंट अलग हुए, दे कैन फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कैन फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दूर जाते जा रहे हैं और घूम के क्या होंगे आगे, क्योंकि अर्थ इज राउंड इन शेप, अगेन इट कम क्लोजर। यस, इट हैपन्स और नॉट? यस, इट हैपन्स अगेन आफ्टर मिलियन ईयर। ओके, समझ में आ रहा है कि कॉन्टिनेंट धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। और कितना दूर जा रहे हैं? आई टेल यू, आपकी ये रूलर स्केल होती है ना 15 सेंटीमीटर, इतना ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कि किसी को दिखे भी ना, कोई गैस भी ना कर पाए। एक स्केल कितनी होती है? छोटी सी स्केल है ना, 15 सेंटीमीटर की होती है, छोटी रूलर होती है ना, जिससे आप मार्जिन खींचते हो। ओके, उतना ही दूर हो रही है कॉन्टिनेंट एक दूसरे से। तो सपोज मैं ये रूम का ही ले लूँ, स्केल से इसको मेज़र करूँ तो कितनी स्केल लगेगी पूरे मेजर करने में ये रूम को, है ना? बहुत सारी स्केल लगेगी, मतलब कई साल, यानी इतना ही डिस्टेंस पार करने में कॉन्टिनेंट को कई साल लगेंगे। तो हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन कॉन्टिनेंट क्या होंगे? कंटिन्यूसली एक दूसरे से और दूर जाते जाते एक दिन पास में आएगा कि सारे कॉन्टिनेंट फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट में चेंज हो जाएंगे। इट कैन हैपन चिल्ड्रन आफ्टर मिलियन ईयर्स। ओके, कई मिलियन ईयर्स के बाद फिर से ये सारे कॉन्टिनेंट क्या होंगे चिल्ड्रन? दे कम क्लोजर एंड फॉर्म अ सुपर कॉन्टिनेंट। क्लियर? ये इसलिए ये कॉन्टिनेंट, ये इसलिए ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लेट मूवमेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट, see, there are 3 types of plate movements: convergent, divergent and transform. Underline it, these are the 3 types of plate movements: convergent, divergent and transform. So first plate name is convergent plate movement. Convergent, okay, convergent movement. Okay, let's talk about this topic. Convergent plate movement, it occurs when two tectonic plates move toward each other and collide due to force of comparison. When these plates collide, the rock layer of the earth gets folded. This process is known as folding. Again I repeat the line and explain you children. It occurs when two tectonic plate, अब कोई भी दो टेक्टोनिक प्लेट ले लो, ओके, कोई भी दो कॉन्टिनेंट को ले लो, दे कैन कम क्लोजर। ओके, तो ये फोल्ड होंगे लाइक दैट, एक के ऊपर एक आएंगे लाइक दैट। ओके, दे कैन कम क्लोजर एंड दे कैन फोल्ड लाइक दैट। ओके, होगा ऐसा? सी, it occurs when two tectonic plates move toward each other and collide due to force of comparison. When these plates collide, टकराएंगे, okay, the rock layer of the earth get fold. जो लेयर है वो फोल्ड होगी, एक के ऊपर एक आएगी। ओके,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोल्डिंग। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाएगा चिल्ड्रन? फोल्डिंग। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब ये जो फोल्ड होगा तो इससे क्या होगा? फोल्ड माउंटेन क्रिएट होगा। क्लियर चिल्ड्रन? फोल्ड माउंटेन। A fold mountain has downfall or valley and upfold mountain or ridges known as synclines and anticlines respectively. Okay? टकराएंगे तो वैली बनेगी, गहराई भी बनेगी और ऊंचाई भी बनेगी। होगा ना ऐसा? अब देखो जैसे दो कॉन्टिनेंट है एक दूसरे के पास में आए और वो फोल्ड हो गए, फोल्ड होके ऊंचा माउंटेन बनाएंगे। ऊंचा बनेगा तो कहीं गहराई भी तो होगी। ओके, वैली भी बनेगी और माउंटेन भी बनेगा। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? अगेन आई रिपीट द सेंटेंस। अ फोल्ड माउंटेन हैज टू डाउनफॉल फॉर वैली, वैली होगा, एंड अपफोल्ड ओके, और रिज नोन एज सिनक्लाइंस। वैली को सिनक्लाइंस बोला गया है और अपफोल्ड को क्या बोला गया? रिज को एंटीक्लाइंस रिस्पेक्टिवली बोला गया है। ओके, एंटीक्लाइंस बोला गया है। क्लियर? द फोल्ड माउंटेन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन, ऑल्सो नोन एज न्यू फोल्ड माउंटेन। अब माउंटेन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया चिल्ड्रन। One first is the old fold mountain and the young fold mountain or a new fold mountain. We can talk about these two mountains in the next period. Have a good day. Have a nice day, children. Read out these para. It is very interesting chapter, children. What I teach you today, please go through it. तब तक के लिए bye bye. Have a good day.